عزیز طلبہ و طالبات، سال اول اردو اختیاری مضمون میسور یونیورسٹی۔ اس سیشن کا عنوان ہے باغ و بہار، شروع قصے کا۔ اس سیشن کے مین کنٹینٹ ہیں: بادشاہ وزیر کی تلقین سے متاثر، بادشاہ تخت مبارک پر جلوہ افروز، کتاب کا بغور مطالعہ کرنا، درود وظیفہ پڑھنا، اللہ سے دعا و استغفار کرنا اور دعا مانگنا، بادشاہ کا صبح کو دربار کرنا، بھیس بدل کر قبرستان جانا، قبرستان میں چراغ کا دیدار کرنا۔ وزیر جو تجربہ کار اور عقل مند ہے، نام اس کا خیرت مند ہے، اسم با مسمہ۔ جب بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، عوام اور خواص وزیر کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تمام درباریوں اور امراؤں کو لے کر دیوان عام میں جمع ہوتے ہیں اور انہیں وہیں چھوڑ کر بادشاہ سے ملاقات وزیر کرتا ہے۔ بادشاہ کی حلیے کو دیکھ کر وزیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ آخرکار ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ سرکار، جب سے آپ نے حکومت کے کاموں سے ہاتھ اٹھایا ہے، ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے، ہر طرف ابتری پھیلی ہے۔ آپ کے غلاموں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ جواب میں فرماتے ہیں، اے خیرت مند، سن، میں اب تک حکومت کے کام کاج اور حکومت کو پھیلانے میں زندگی گزارتا رہا۔ ساری عمر اسی درد سر میں میری کٹ گئی، اسی میں میں ضعیف ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اب موت کے دن قریب ہیں، آج تک اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہ دیا، اس سے میرا دل مغموم ہے، اس لیے دنیا سے میں نے منہ موڑا ہے۔ سوچا ہے اب کسی کو منہ نہ دکھاؤں گا اور دنیا کے بکھیڑوں میں نہ پڑوں گا۔ زندگی تو نہ سنور سکی، کم سے کم مرنے کے بعد تو چین ملے، یہ کہہ کر ایک آہ بھری اور چپ ہو رہا۔ یہ سن کر خیرت مند بولا، اللہ کے رحم و کرم سے مایوس ہونا اچھا نہیں۔ جس نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کے لیے تمہیں ایک بیٹا دینا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کے والد کے زمانے سے وزیر ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس حکومت کو مضبوط کرنے میں آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت مشقت کی ہے۔ اس وقت ذرا سی نادانی سے ساری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، سارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ تجھے بادشاہ بنا کر ساری رعایا کے جان و مال کی حفاظت تجھے سونپی تھی، تو نے ہماری رحمت سے مایوس ہو کر اس فرض کو بھی بھلا دیا۔ اس وقت ساری زندگی کی عبادت بھی کام نہ آئے گی۔ غلام کی گستاخی معاف ہے۔ یوں جنگل جنگل پھرنا، جوگیوں اور فقیروں کا کام کرنا بادشاہوں کو راس نہیں آتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگیں،
साथ साथ हर वक्त अल्लाह से लौ भी लगाए। दिन को रियाया की खिदमत करें, रात को अल्लाह की इबादत करें। इसके अलावा मोहताजों की मदद करें, यतीमों और बेवाओं को सहारा दें। सबके दिल से दुआ निकलेगी और अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। वजीर की इन बातों से ढारस बंध जाती है। बादशाह फरमाते हैं, ऐ वजीर, तू जो कहता है भला ये भी कर देखें। आगे जो अल्लाह की मर्जी है सो वो होगा। फिर पूछा, ये तो बता, अमीरों और दरबारियों का क्या हाल है? वो बोला, सब आपकी जान और माल को दुआ देते हैं। आपकी वजह से सब परेशान हैं। दरबार आम में जमा हैं, जरा सूरत देख ले तो तसल्ली हो। बादशाह ने वादा किया कि हम कल दरबार आएंगे, सबसे कहो हाजिर रहें। अगले दिन बादशाह ने दरबार किया। बादशाह को दीदार करने के मुतमन्नी कव्वास और अवाम थे। खुशी के नौबत बजाने लगे। सब दरबारियों ने नजर दी और मुबारकबाद पेश की। मुल्क के हर आदमी को सच्ची खुशी नसीब हुई। दोपहर को दरबार से उठकर बादशाह ने आराम किया। फिर एक दिन किताब पढ़ी, वजीफा पढ़ा और अल्लाह से अपने काम के लिए दुआ मांगी। एक दिन इस किताब में लिखा देखा कि अगर किसी शख्स को कोई फिक्र लाहक हो, इसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो तकदीर के हवाले कर दे। अपने सुकून के लिए कब्रिस्तान में जाएं और देखें कि कैसे कैसे शान और शौकत वाले इस दुनिया में आए, आकर खाक में मिल गए। ये बात बादशाह के जी को लगी, मगर सोचा कि भीड़ भाड़ में बादशाहों की तरह जाना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि वो रात में भेष बदल कर कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं और वहां पर फकीर के तकिए में जाकर देखते हैं कि किस तरह से तो एक दूसरे से चार फकीर के गुफ्तगू में गर्क हैं। बादशाह फिर फिक्र में पड़ जाते हैं। आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर इस कब्रिस्तान में, यानी हर इंसान को खाक में मिला दिया जाता है। उन्हें उसी वक्त एक कहावत याद आती है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच आ साबित गया न को। अब जो देखिए, सिवाय एक मिट्टी के ढेर के सिवा इनके कोई निशान बाकी नहीं है। खबर में मदफून जो तमाम दौलते दुनिया, घर बार, आले औलाद, रिश्तेदार, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, तमाम सवारियों को छोड़कर तने तनहा दफन किए गए हैं। ये सब इनके कुछ काम न आएंगे, बल्कि अब कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे और खबर के अंदर का अहवाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े, चूंटियां, सांप, बिच्छू इन्हें खा रहे हैं या उन पर क्या बीत रही है। खुदा सी कैसी बनी उनकी, सोचने लगते हैं। तब उसके दिल का गुंचा हमेशा के बेहतर यही समझते हैं कि रात में हर दिन भेष बदल कर
कब्रिस्तान में या किसी पहुंचे हुए फकीर के तकिए में जाना चाहिए। चुनांचा रात को मोटे छोटे कपड़े पहनकर किले से निकलते हैं बादशाह। कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। उस वक्त जोर की हवा चल रही थी। अचानक बादशाह को दूर से एक शोला यानी एक चिराग नजर आता है जो सुबह की सितारे की तरह चमक रहा था। समझ गए कि आंधी में ये चिराग हिकमत से खाली नहीं, हो न हो एक किसी वली का चिराग है, इसके पास चलना चाहिए। शायद इस रोशनी के नूर से मेरे घर का चिराग भी रोशन हो जाए और दिल की मुराद पूरी हो जाए। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि 4 फकीर यानी 4 दरवेश गले में लंबी लंबी कुर्तियां डाले, घुटनों पर सर धरे खामोश बैठे हैं, जैसे कोई मुसाफिर अपने वतन से बिछड़कर और बेसहारा होकर उदास बैठा हो। पास ही पत्थर पर एक दिया धरा टिमटिमा रहा है, मगर हैरत है कि हवा से गुल नहीं होता। अब तो बादशाह आजाद वक्त को यकीन हो जाता है, तेरी मुराद का सूखा दरख्त इन्हीं के बरकत, तेरी मुराद का सूखा दरख्त इन्हीं की बरकत से हरा होकर फलेगा। इरादा किया कि कदम आगे धरे, मगर अक्ल ने समझाया कि ऐ बेवकूफ जल्दी न कर, जरा देख ले, क्या खबर ये देव हो या जिन्न हो या भूत हो और आदमी की शक्ल बनाकर यहाँ मिल बैठे हो। यहीं कोने में छुप के बैठ जा और देख कि क्या भेद है। इतने में एक फकीर को छींक आती है तो सब चौंक पड़ते हैं। चिराग की लौ को जरा ऊपर करते हैं। अलाव तो जल ही रहा था। हुक्के भरे और अपने अपने बिस्तरों में बैठे हुक्का पीने लगे। इनमें से एक बोला, दोस्तों, हम 4 सूरतों को आसमान की गर्दिश से मुद्दतों दुनिया जहान की ठोकरें खानी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि इसके करम से आज हम सब यहाँ मिल बैठे। कल का हाल मालूम नहीं कि एक जगह रहें या जुदा हो जाए। रात बड़ी पहाड़ होती है। बेहतर है कि सब वो सारी बातें सुनाएं जो हम पर बीतती हैं, मगर झूठ इसमें रत्ती भर ना हो। इस तरह बातों बातों में रात कट जाएगी। थोड़ी रात रहे, जरा सो लेंगे। सबों ने कहा, आपने ठीक कहा। बेहतर है कि पहले आप अपना अहवाल सुनाएं। इस तरह 4 दरवेश एक के बाद दूसरे अपनी अपनी जिंदगी की आप बीती सुनाते हैं। शुक्रिया।